Hello students, I welcome you on my YouTube channel Manoj Jangir Classes. And in today's video, we are going to talk about chapter number 2, or you can say unit number 2, collection, organization, and presentation of data. In this unit, we are going to talk about collection of data first of all. So I don't need to tell you this thing that this is basically statistics for economics, class 11th. Our topic is collection of data. This is chapter number 2. So if we talk about collection of data, then it is very important for you all to come across some basic things, some basic terminology, some basic terms here. So अगर मैं basic terms की बात करूं तो सबसे पहले the most important thing, the foremost thing, that is what do you mean by collection of data? Collection of data क्या होता है? If we talk about collection of data, then it refers to systematic recording. ऐसे नहीं haphazard manner में record कर लिया. No, systematic record of data either by the enumeration or estimation. Enumeration का मतलब होता है that अगर मेरे पास 10 items हैं, let's say 10 students हैं एक क्लास में, और one by one मैं उन सब के पास जाके information collect करता हूँ, that is what we call enumeration method. अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं और 100 में से मैं 10 के रैंडमली सिलेक्ट करके 10 की स्टडी करता हूं, उसको मैं कहूंगा एस्टिमेशन मेथड कि मैंने एस्टिमेट लगाया है. एक्यूरेट नहीं है डेटा, एस्टिमेटेड डेटा है. सो कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ईदर बाय एन्यूमरेशन और बाय एस्टिमेशन. आप एन्यूमरेटेड डेटा ले सकते हैं, आप चाहें तो एस्टिमेटेड डेटा भी ले सकते हैं. The next question is, what do you mean by statistical inquiry, statistical investigation, statistical survey? आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको. Inquiry, survey और investigation क्या होता है ये? So it is a process of collecting numerical data. ये वो process होता है जिसमें numerical data collect किया जाता है. आप जब भी कोई inquiry conduct करते हैं, जब भी आप कोई survey conduct करते हैं, whenever you conduct an investigation. So it is a process of collecting data. ये डेटा कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिविजुअल्स, whatever related to a particular purpose, related to a particular problem, और उससे रिलेटेड डेटा हम लोगों से इकट्ठा करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल सर्वे और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन भी बोला जाता है. इससे हमारे पास एक और टर्म आती है कि भाई इन्वेस्टिगेटर क्या होता है. सो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर. Investigation is a verb, investigator is a noun. So investigator basically person होता है एक, a person who conducts the statistical survey. Investigator वो person होता है जो statistical survey को conduct करता है, उसको हम बोलते हैं investigator. Keep on paying attention all of you because यहाँ पर छोटी छोटी terms जो हैं ये आप काफी ज्यादा यूज होने वाली हैं आगे. What do you mean by enumerator? The person who helps the investigator. कभी कभी ऐसा होता है, sometimes it happens that the area of study becomes very large. In that case, investigator himself alone cannot collect all the information, so he recruits a person to help him in collection of data. So it is the person who helps the investigator in collecting the information or data, and that person is basically called as enumerator. वो person, वो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटर की डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है इज नोन एज एन्यूमरेटर. वी आर हैविंग द नेक्स्ट टर्म दैट इज रेस्पोंडेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स. आप इनको रेस्पोंडेंट्स भी बोल सकते हैं, आप इनको इन्फॉर्मेंट्स भी बोल सकते हैं. द पर्सन फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन, वो पर्सन जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ऑब्टेन करनी है. द पर्सन फ्रॉम हुम इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड or collected are known as respondents. वो लोग जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे आप टीवीज वगैरह में देखते होंगे कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है टीवी पे चल रही है और एक पैनल बैठा हुआ है, साइड में स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, and all these three people are telling their experience, sharing the knowledge, sharing the information which they are having. You are collecting them.
इनको हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट। पर्सन ए बी सी, दोज पीपल हु आर गिविंग द इंफॉर्मेशन आर नोन एज रेस्पोंडेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में व्हेन यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है देन इट इज अ प्रॉब्लम, तो आप इनके बारे में जरूर पता कीजिए। नाउ हमने डेटा कलेक्शन की बात कर ली, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर ली। काफी बुक्स में प्राइमरी सोर्सेस करके भी ऐसे करके एक सोर्सेज ऑफ डेटा करके दिया हुआ है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। इस तरीके से भी काफी सारी बुक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ डेटा दिया हुआ है। सो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो इट्स नथिंग न्यू, लाइक अलग नहीं है, ये बहुत आसान है। व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि एक तरीके से जब डायरेक्टली जाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इट इज बेसिकली प्राइमरी सोर्स। जब आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं जिसके पास वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। राइट नाउ आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर, तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे कलेक्ट करेंगे तो दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी सोर्सेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं डेटा, जबकि सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें तो दिस काइंड ऑफ सोर्सेज बेसिकली कैन बी एन एजेंसी, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसने पहले से डेटा कलेक्ट किया हुआ है और आप उस डेटा को यूज कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी सोर्सेज। तो इस तरीके से भी कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर इस टॉपिक पे, पीपीपी, प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली, जिसको आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट। मैं पीपीपी बोलता हूं। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओवरऑल छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको, डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इज नोन एज प्राइमरी डेटा। आप पहली बार कलेक्ट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, डेटा which is collected by someone else, this is some else नहीं होगा, this is someone else and used by some another investigator। ये डेटा कलेक्ट कोई और करता है, यूज कोई और करता है अपने पर्पस के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्योंकि आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं तो इट इज नोन एज ओरिजिनल डेटा। सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल डेटा, ये किसी और ने कलेक्ट किया हुआ होता है और आप जस्ट इसे यूज करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियर करवा देता हूं प्राइमरी डेटा से। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट किया जाता है बाय इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर्स टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के लिए आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, फॉर वट एवर पर्पस यू वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, यू वांट टू कलेक्ट द डेटा। So if you're collecting the information to serve your own purpose and it is collected by the investigator for the very first time from the source of origin, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इट इज दे आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, तो इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी बोला जाता है। द सोर्सेज फ्रॉम वेयर दीज डेटा कैन बी कलेक्टेड आर नोन एज प्राइमरी सोर्सेज। जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि जहां से ये कलेक्ट किया जाता है उनको प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो in India, the agencies or organizations which collect and publish the primary data are Central Statistical Organization, ये CSO short form में बोला जाता है। प्राइमरी डेटा है ये। सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO जितने भी सैंपल्स कलेक्ट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सैंपल्स कलेक्ट करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे प्राइमरी डेटा होता है आपका, ओरिजिन से लिया जाता है और वही लोग इसे कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। स्पेशली आरबीआई वगैरह की बात करूं मैं, एनएसएसओ की बात करूं तो आई होप प्राइमरी डेटा आपको क्लियर होगा। इन्वेस्टिगेटर पहली बार कलेक्ट करता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करता है, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा की अगर मैं बात करूं तो द डेटा विच इज नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता, बट which have been obtained from other persons, agencies, investigators, organizations। किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी और पर्सन ने, किसी और एजेंसी ने पहले से कलेक्ट कर रखा है।
इट इज प्री एग्जिस्टिंग डेटा, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, आप जब अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते, उससे भी पहले, विच इज यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ये प्री कलेक्टेड होता है जो किसी इन्वेस्टिगेटर के थ्रू यूज किया जाता है। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, ये पहले से अवेलेबल होता है, या तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है। सिंस these data have already been collected by some other agencies, they are available in the form of published और unpublished data, unpublished form, दोनों में ये अवेलेबल होता है। आप इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सेकेंडरी डेटा, कोई भी पब्लिक कोई भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, कमीशन एंड कमिटीज जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन, इनमें अगर कोई सर्वे हुआ है और कोई डेटा प्रेजेंट किया जाता है तो ये सारे के सारे सेकेंडरी डेटा होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन, द मीनिंग, examples of secondary data with some basic terms. I hope so you people have enjoyed this video. In case you have any doubt, you can write your doubts in the chat section, in the comment section. I'll read them and definitely reply to all of them. See you in your next class, all of you. Thank you so much for watching this video. See you in my next class.